Hey guys, this is Sumi Side. Welcome to my channel. And yes, we have followed multiple series like accounts, business studies, English, etc. etc. So let's talk about economics as well. Sharing my scores first of all in both. I scored 96 on 100 in economics. Like from being a girl who was very scared of watching her pre-boards ke marks and then actually getting that 96 on 100 in economics. The journey included a lot of strategies, smart work and mistakes to avoid that you should actually know. And I guess this particular video will make you as a person who does not know anything, who hasn't even touched the E of economics, to being the person who has just done stuffs that will be actually coming up in the examination. So मैंने 2023 का boards दिया था and I just remember all the stuffs that happened to me, getting scores even lower than 40 and then expecting that I'll be scoring 90 plus in the direct boards. So वो confidence build up करना, वो main strategies लगाना, what were the things that I followed up in this last month of बोर्ड एग्ज़ाम्स. आई नो तुम्हारे भी एग्ज़ाम्स 15 ऑफ फेब समथिंग में होने वाले हैं एंड आई गेट इट अच्छे से कि ये लास्ट मंथ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल ऑफ यू टू यूटिलाइज, चाहे वो सैम्पल पेपर हो एंड चाहे वो इस चीज़ का भी हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू गाइज हैवंट येट कंप्लीटेड योर सिलेबस इन माइनर सब्जेक्ट्स, बट यू नो दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल कि तुम अभी भी अपना सिलेबस लेके बैठे हो. बट डोंट वरी एट ऑल, समी साइड इज़ हेयर एंड या आई विल बी शेयरिंग एवरीथिंग, वट एवर यू गाइज आर हैविंग एज अ डाउट, वट एवर I had a doubt back then and how did I actually overcame it, and all the things that you should just spot it out and work on yourself before it's too late. Okay, so economics is a subject जिसमें ना starting से ही सबका base ज़्यादा strong नहीं रहता. So the best thing is कि शुरुआत से जब तुम्हें realize हो रहा है that now I really have to start economics and I have to take it till last, beyond it जब तक मेरे ढंग के मार्क्स ना आ जाए प्री बोर्ड्स में या फिर द मॉक्स दैट आई एम गिविंग पर्सनली, तब तक इसमें लगे रहो. एंड येस, दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू कि एक सब्जेक्ट के चक्कर में you guys will compromise the scores for other subjects. आप अकाउंटेंसी में 100% ऑफ द टाइम दे रहे हो, इट विल हैपन दैट तुम्हारे बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश के मार्क्स कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, दैट विल बी इम्पैक्टेड. एंड व्हाट्स द गारंटी कि तुम अकाउंट्स में 100% ही स्कोर कर रहे हो. सो यू हैव टू टेक everything together, and that's why let's strictly talk about macroeconomics in this particular video. So macroeconomics is more of a quantitative, sometimes graphical and sometimes theory वाला subject. अब इसमें होता ये है कि I will not ignore the fact that you guys are only left with 1 month to your board examinations. So इस 1 month को ढंग से utilize करे. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो हद से हद तक यू एज अ पर्सन हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 40% ऑफ द सिलेबस, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो या चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो. एंड माइंडेड गाइज, इफ इट्स लोअर देन 40% यू हैव टू रश थिंग्स नो मैटर व्हाट. तो सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये 2 टिक्स लगाओ. द फर्स्ट वन बीइंग वीडियो लेक्चर्स एंड द सेकंड वन बीइंग मेक योर सेल्फ नोट्स. एंड वीडियो लेक्चर्स के बाद ये सेकंड स्टेप कुड बी मॉडिफाइड एज watch the lectures or understand the chapter from your favorite teacher. Second, practice back questions. Back questions में if you guys have Sandeep Garg has really cluttered questions जो कि past years में आए हैं and that are important and topic wise questions. So वो तुम practice करते करते सुबह से शाम हो जाएंगी तब भी नहीं खत्म होंगे. But make sure that आपने maximum questions practice कर लिए. So making notes and doing questions. These two things should be very very clear, चाहे तुम कोई सा भी चैप्टर भी उठा के कंप्लीट कर रहे हो. Well, ये 2 important steps अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है, so you guys are very very ready to move on to the third step that will actually make you score 100 on 100 in economics board examination. पर उससे पहले I would just like to thank College Vidya because this video is brought to you by them. So let's clearly hear what College Vidya has on the table for you. This portal you can directly apply to thousands of jobs and paid internships. यहाँ काफ़ी सारे UG, PG and online courses available है and इसमें से तुम अपना कोर्स भी चूज कर सकते हो. कुछ बेसिक डिटेल्स डालने पे इसका AI मॉडल आपको कुछ यूनिवर्सिटीज का नेम सजेस्ट करेगा जो कि टोटली गवर्नमेंट अप्रूव्ड होंगी. अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प चाहिए तो आप बिल्कुल कॉलेज विद्या के काउंसलर से या फिर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के काउंसलर से ऑडियो या वीडियो कॉल पर आ सकते हो.
आप अपना डिसीजन लेने के लिए ऐड टू कंपेयर के इस फीचर से ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर भी कर सकते हो। एंड अगर एडमिशन के टाइम कोई यूनिवर्सिटी आपको EMI ऑप्शन अवेल नहीं करके देती तो कॉलेज विद्या आपको वो ऑप्शन अवेलेबल करके देगा। तुम्हें प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज एंड ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम्स भी मिलेंगे सिर्फ 6,999 में, बट ये सब फ्री में मिलेगा इफ यू टेक एडमिशन थ्रू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन कॉलेज विद्याज ह्यूज कम्युनिटी फॉर नेटवर्किंग। नेक्स्टली, कॉलेज विद्या सब्सिडी फीचर से स्टूडेंट्स को मिल सकती है सब्सिडी अप टू ₹10,000। Overall, it's a one-stop solution for all of you. Do check out the link of the website. It's given in the description. So hoping तुमने लिंक इन द डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके चेकआउट कर लिया होगा. Let's move forward to our next step. So assuming that तुमने फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया, you guys are very very ready to crack your third master step. Start with sample papers. अब आई डोंट रिमेंबर क्लियरली बट आई रिमेंबर दिस फैक्ट वेरी वेल दैट मैं इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट भले ही ख़त्म हुआ हो या ना हुआ हो चैप्टर वाइज, बट आई ऑलरेडी स्टार्टेड सॉल्विंग अप सैम्पल पेपर्स दिसंबर एंड से ही, बिकॉज आई हैड माई इकोनॉमिक्स के पहले प्री बोर्ड्स इन दिसंबर इटसेल्फ. सो आई वॉज वेरी मच स्कैर्ड अबाउट कि पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, इंडियन इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिविजन कैसे होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो ये करने के लिए तुम्हें सिर्फ एक ही चीज हेल्प कर सकती है, सैम्पल पेपर्स. अब देखो, नो मैटर व्हाट, तुमने जिस भी चैप्टर का लेक्चर देख लिया है एंड नोट्स लगा लिए हैं, द मेन थिंग हेयर इज कि तुमने एक्चुअली सैम्पल पेपर्स अगर शुरू कर लिए, सबसे फर्स्ट थिंग तुम सिर्फ एकदम सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ोगे जो कि एक्चुअली पास्ट ईयर में आए हैं एंड विच आर मोर prone to just reappear in your this upcoming examination. And second thing if you think that you're not confident about the syllabus that you have completed, then sample papers will actually make your 80%, in fact more than that, syllabus completed. अगर तुम जितने ज़्यादा sample papers attempt करते हो उतने ही ज़्यादा जल्दी तुम्हारा syllabus भी complete हो जाएगा, because not everything appears in your exam sheet from the books. So division of the scores is लाइक 40 मार्क्स एंड 40 मार्क्स. तो फिर इंडियन इकोनॉमी आपकी 40 की होगी, मैक्रो भी 40 होगी. सो जस्ट अज्यूम दैट सिर्फ अगर तुम मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस पहले कर रहे हो, जो कि हाँ अभी करना इज़ नेसेसरी, बट टेंटिव टाइम दोगे, सिलेक्टिव टाइम दोगे तो उतना ही ज़्यादा तुम यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट. सो ट्राई दैट 1 hour 10 minutes के विद इन आप पार्ट ए यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट यू आर एबल टू क्लियर अप, बिकॉज देन 40 मार्क्स आर ऑल्सो फॉर इंडियन इकोनॉमी, इवन दो यू आर अलॉटिंग लेसर टाइम टू इंडियन इकोनॉमी, but the weightage is same. So you have to consider that you have to just allot proper time जिसको जितना चाहिए तुम्हारी तैयारी के हिसाब से, उस हिसाब से you are able to complete and किसी में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है. So 1 hour 10 minutes for macroeconomics. So question paper solve करते वक्त you will arrive into two main situation. The first one being जहाँ पे तुम choice में कोई एक select करते हो, and the second one being कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके आंसर के बारे में तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं होते और यू जस्ट राइट बना के जेनरिक पॉइंट्स. बिलीव मी गाइज, दैट इज़ अ वेरी शॉर्टकट एंड रॉन्ग मेथड. तुम्हें मार्क्स नहीं मिलने वाले नो मैटर व्हाट. एंड आवर टारगेट इज़ कि अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है 5 on 5 चाहिए, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है 8 on 8 चाहिए. सो फॉरगेट अबाउट मेकिंग जेनरिक पॉइंट्स, खासकर इन इंडियन इकोनॉमी. व्हाट यू गाइज नीड टू डू इज, सबसे पहले तो उस क्वेश्चन को स्किप कर दो मॉक देते हुए जिसका आंसर तुम्हें नहीं आता है. तुम्हें ये इंश्योर करना है कि जितनी तुम्हारी तैयारी हो रखी है, तुम जब उसको लिखने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें तुम्हारे मार्क्स आ पा रहे हैं या फिर नहीं. ना कि एकदम ही जिन क्वेश्चंस का आइडिया नहीं है तुम उनको भी उसी वक्त एट अ टाइम सॉल्व करने के लिए बैठ रहे हो तो तुम्हारे माइंड में कुछ तो पॉइंट्स आ जाएंगे, बट दैट विल नॉट मेक यू स्कोर 100% इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो यू हैव टू स्किप द क्वेश्चन दैट यू डोंट नो एट ऑल वाइल गिविंग द मॉक एंड फर्स्ट स्किप द क्वेश्चन जिसमें चॉइस होती है. बट वाइल यू आर एक्चुअली रीचेकिंग योर आंसर, तो उसमें तुम्हें वो क्वेश्चन जो तुमने छोड़ा था ऑप्शन में, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, बिकॉज तुम दो में से कोई एक वही चूज करते हो जिसमें तुम्हें ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, एंड सेकेंड वाला इसलिए छोड़ते हो बिकॉज यू आर नॉट वेरी वेल अवेयर. बट अगर वो सेकेंड ऑप्शन एज अ सिंगुलर क्वेश्चन बन के आ जाता है विद नो ऑप्शन, तो यू हैव टू अटेम्प्ट इट नो मैटर व्हाट. इसीलिए तुम्हें उस क्वेश्चन की भी ढंग से तैयारी करनी है. एंड जो क्वेश्चन तुमने छोड़े थे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था जिनका, उन सबको भी ढंग से प्रैक्टिस करना है. यू हैव टू राइट द वैल्यू पॉइंट्स, in the sense just learn through the value points, integrate it with good English, have a good handwriting and revise. Like
saying it 3 times means something. जितना हो सकता है उतना ज़्यादा मैक्रो इकोनॉमिक्स के टेक्निकल टर्म्स एंड टेक्निकल कंसेप्ट्स को भी रिवाइज करते रहो. अपनी नोट्स वाली नोटबुक को भी निकालो एंड कीप रिवाइजिंग इट एंड मेक श्योर दैट यू डोंट फॉरगेट अबाउट कंसेप्ट्स. सो बस यही कुछ चीज़ें शेयर करनी थी. एंड यू नो व्हाट, अगर तुम ये चीज़ें अभी नहीं कर रहे हो तो जस्ट स्टे रेडी टू वॉच दैट 7 days में इकोनॉमिक्स कैसे ख़त्म करे, 1 day में इकोनॉमिक्स कैसे ख़त्म करे. आई नो दैट यू गाइज आर वेरी मच स्मार्ट इनफ टू नो कि अभी की सिचुएशन क्या है एंड तुम्हें किस हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए. लाइक grow up guys and don't act childish anymore. Stay serious because it's your life. तुम ये सब किसी और के लिए नहीं कर. So make sure that even if for goodwill ही सही, but you have some marks to show कि भाई intelligence level क्या है उस हिसाब से. So yeah, I hope that this video So I hope that this video helps you out. And मिलते हैं इंडियन इकोनॉमी की वीडियो में भी, जो कि सजेशन में भी आ गई होगी एंड विल पब्लिश सून. इसके अलावा किसी भी और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी को देखना है, यू गाइज कैन क्लिक इट आउट, डिस्क्रिप्शन में है. कॉलेज विद्या को विजिट करना मत भूलना, बिकॉज whosoever of you guys are looking for different courses are turning into courses other than जो CUT से मिल रहा है. So that is a very great platform for you to integrate colleges and your courses at reasonable price. So मिलते हैं next video में.